Welcome back to the online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I just requested to you, don't go outside your homes. Also don't go into the crowded places. And if it should be necessary and have to go outside your homes, use the properly face mask covers, take sanitizers with you. Always be wash your hand as a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. The students, today we discussing about the new chapter of your syllabus, that is the chapter number 14, chemical effect of electric current, that we have to discussing onto the today's sessions. So before we discussing about the electric current, we have to be known about something about the formations that is called as a formations which is known as a current. So in this chapter we have to discussing about the different terms like what is called electric current, in which what is conductor and insulator, what is the chemical effect of the current specifically which is called as electrolysis, applications of the electrolysis, applications of electroplating. These are the generally we have to discussing. So before we discussing this chapter, we all know the electricity is very much important or plays a very vital role in our daily life. Okay, so in our life electricity plays a very important role. It is very difficult, it is very difficult to imagine a world without the electricity. When you are sitting in a room and there is no any electricity, you will feel a war situations into the summers. So each day generally we use the electricity into the countless numbers of the ways without any giving of any thought. We generally having to be used so much numerous forms of the applications by using the electric current. So we use electricity for the different purposes like light our houses, we use for the cooking of foods, watch the televisions, run the computers, play the video games, listens to music, or maybe light the furnace into the winters, run air conditioners into the summer seasons, mobile charging, etc. Different type of process which we have to using by the electricity. So that is not any end of endless. There is a number of applications which generally having to use the electricity. So can you think of any one more way in which the use of electricity? Any generally forms? Without electricity, we would not be able to do anything in our life that should be a very different. If we want to do anything, it is very difficult to be implement this type of things. So electricity is one of the hands to a significant discoveries into the form of history. So electricity is one of the significant effect that can be implemented into the form of history, that is a part of the electricity. So when you see onto the screen, there is a formations your elders that have might been continuous use against the touching the electrical appliances. Generally when electricity is passing through any conductor of the wire, so your elders most ofly have to told that don't touch that electric wires or electric appliances with your right hands. So, but do you know why it is to be dangerous to electric appliances with the right hands? It is really because we have learned earlier some of the substances like the materials of metals which generally easily pass the electric current. So they are generally a good conductor of the electricity. On the other hand, the substance which do not allow the electric current, which cannot be passes from the specific formations, so that is called as a conductor. Okay, the substance which can easily pass the electric current, that is called conductor. Substance which cannot be passed the electric current, that is called insulator. So in the previous class, we have already making some of the applications which should be made by the electric formations like tester. You have to make a particular materials which generally imagines can find out if the electric current is passes through them or not, or maybe using for the declarations of that how we can find the electric current is passing through or not. So here the figure is given that we found the metals like such as a copper and aluminum and conduct the electricity, where the materials such as rubber cannot pass the electric current. So you will see that the substance which is given into the figure is a substance which can easily pass the electric current like this. Formations like it is a part of the battery where we can be use the simple formations कि ये जो battery है, like this is the battery, ये जो battery इसका जो मैंने rotations किया है, ये battery जो है it is a part of the chemical formations, और ये तो जो है ये आपके दो wires है, these are the two wires. तो ये जैसे ही इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव एंड, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है वो दोनों जैसे मूव कर रही है, एक आपका जो है वो टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा है, दूसरा किसके साथ जुड़ा है, टेस्टर के साथ जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस फॉर्मेशंस इलेक्ट्रिक करंट इजीली दैट कैन बी पासेस थ्रू दैट सेक्शंस.
वो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेटलिक फॉर्मेशन जो दिया है कि ये जो मेटल्स आपने बनाया ये जो है वो पोर्शन मेटल का है, ये मेटल के पोर्शन जो होता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करेगा। लेकिन जो दूसरे सब्सटेंसेस है विच कैन नॉट बी पास द इलेक्ट्रिक करंट, तो वैसे ही हम दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे दूसरी जो आपको फिगर दिख रही है कि जो दूसरे फिगर्स के अंदर लाइक रबर है, प्लास्टिक है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं जो आप मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं दे डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट। वैसे लिक्विड के अंदर भी है, लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक यहाँ पे फॉर्मेशन जो दिया है कि ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन पुअर कंडक्टर का दिया है। पुअर कंडक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस पुअर कंडक्टर के फॉर्मेशंस के अंदर ये जो वायर जो यूज किया है, ये जो वायर है वो कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पोर्शंस पे यूज किया है। उसी तरह ये वाला भी वायर जो है पर्टिकुलरली उसका जो प्लास्टिक या रबड़ का पोर्शन है उस पर यूज किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस होगा ये जो होगा इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी पास द इलेक्ट्रिक करंट वेरी इजीली। तो ये मूवमेंट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे फॉर्मेशंस के अंदर। सो इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे सेल्स या जो बैटरीज के फॉर्मेशंस आपने पहले भी डिस्कशन किया, पहले के स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है जो 14.1 के फॉर्म में है कि join the free end of the testers together for a moment. This completes the circuit with the testers with the bulb should glow. However, the bulb does not glow. It means the tester is not working. अगर bulb नहीं कर, so can you think it possible of reason कि tester work नहीं कर रहे? No, it is also fine कि अगर उसका जो metallic construction के साथ अगर वो join नहीं है तो it cannot be properly pass the electric करंट। तो जैसे आप देखेंगे कि जब तक वो मेटेलिक सब्सटेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो इट कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, मेटेलिक सब्सटेंसेस के अंदर ऐसे सच प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए। क्योंकि आप मेटेलिक सब्सटेंसेस के बारे में अगर बात करें तो मेटेलिक सब्सटेंसेस का जो फॉर्मेशंस होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उनके अंदर ऐसे सच प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास आउट करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। वैसे लिक्विड सब्सटेंसेस के अंदर भी है, जैसे यहाँ पे देखिए कि टेस्टिंग अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू जूस ऑफ विनेगर, लेमन जूस को एक बीकर के अंदर रखा हुआ है, उसके बैटरी के साथ दो एंड है, दिस इज द पोर्शंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो दो एंड है इट इज अ पोर्शन ऑफ बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है, इट इज अ पोर्शन ऑफ बैटरी, और बैटरी का जो एंड है वहां पे आप देखिए यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड किया गया है, तो बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो करेगा। सो वो इंप्लीमेंटेशन करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर से पास आउट हो रही है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी पास आउट और नॉट, वो इट कैन बी फाइंड आउट। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी कभी कंडक्ट नहीं भी करता है, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं तो बल्ब जो है वो उसमें ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट उसके अंदर से प्रॉपरली पासिस नहीं होंगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर्मेशन से, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो वैसे में इलेक्ट्रिक करंट क्या है पहले तो वो हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू द एनी बॉडी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है उसके जो मूवमेंट होते हैं उसको चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। तो ये किसी भी सब्सटेंस का एक इन्फ्लुएंसी प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ दिस चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वह इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मूवमेंट होता है, जो चार्जेस होता है थ्रू अ बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोटेट करते हैं। All the materials which do not allow the electric current and which cannot be flow through them, सारे इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते। कीपिंग दिस माइंड कि जो मटेरियल्स जो है उसको कैटेगराइज किया गया दो फॉर्म में, एक को हम इंसुलेटर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कंडक्टर कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टर? कंडक्टर हम किसको कहेंगे? कंडक्टर आर दोज काइंड ऑफ मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो उसके अंदर से फ्लो करने देगा उसको हम कंडक्टर कहेंगे। All the metals like alloys of metals है, electrolytes है, rain water etc. These all are the good conductor। उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इंसुलेटर्स आर दोज काइंड ऑफ द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट एंड
which do not flow the electric current from them, like distilled water is there, plastic is there, wood is there, rubber is there, ऐसे सारे substances जो होंगे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। जो अभी आगे मैंने आपको समझाया कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। उसमें जैसे एक एलईडी होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर ऑफ लाइट सोर्सेज। तो एलईडी आर जनरली यूज होता है इंडिकेटर लैंप्स के अंदर, मेनी ऑफ डिवाइसेस, या फिर मेकिंग ऑफ टॉर्चेस है, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जो यूज होता है उसमें हम एलईडी का ज्यादातर यूज करते हैं। तो अभी कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर है या कौन सा सब्सटेंस इंसुलेटर कैसे पता चलेगा? मान लीजिए वुड है, लकड़ा है मेरे पास, सो वुड इज अ इंसुलेटर और कंडक्टर, कैसे पता चलेगा? हाउ यू कैन बी डिफाइन? तो क्या करो, उसके लिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे कि फर्स्ट फिगर ड्राई सेल, एक ड्राई सेल को कंसीडर करिए और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए और एक कंडक्टिंग वायर ले लीजिए और एक वुडन का ब्लॉक लीजिए। ये चार सब्सटेंसेस आपको चाहिए होंगे। फिर क्या करो कि ये जो इलेक्ट्रिक जो आपने जो ड्राई सेल लिया, उस ड्राई सेल के दो एंड होंगे, दोनों एंड पे ये इलेक्ट्रिक वायर जो है कंडक्टिंग वायर, उसको कनेक्ट करिए और उसको बल्ब के साथ ज्वाइन कीजिए। एक एंड जो होगा वायर का, उसके बीच में वुड को रखिए, वुड में से उस वायर को पास कीजिए। तो आप देखेंगे कि विदाउट वुड वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ग्लो कर रही है, लेकिन जैसे आपने वुड को वहां पे रखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इससे क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास नहीं हो रही है, वुड इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। मान लीजिए कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? सो पहले तो क्या करो कि एक बीकर के अंदर वाटर लो, वाटर के अंदर या उसको एक स्पेसिफिक बैटरी के एंड के जो दो वायर है उसके साथ कनेक्ट करके बल्ब वहां कनेक्टेड करो, तो आप देखोगे कि बल्ब वहां से ग्लो करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है, वाटर दैट कैन बी इजीली फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पर्टिकुलर डिवाइसेस। लेकिन अगर वही डिस्टिल्ड वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी पास द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि प्योर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है। तो मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर, क्योंकि वो करंट पास नहीं करेगा। उसके अलावा मिल्क, अल्कोहल, ऐसे सारे सब्सटेंसेस, विनेगर, ऐसे सारे सब्सटेंसेस पे अगर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में आपको शो करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर हैज नो सॉल्ट, उसके अंदर सॉल्ट नहीं है। अगर आप उसको डिसॉल्व, नो सॉल्ट डिसॉल्व इनटू द फॉर्मेशंस ऑफ लाइक वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट का फॉर्म्स, आपको डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है इसलिए सॉल्ट नहीं होता है। बाकी नॉर्मल वाटर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट कंटेनिंग फॉर्म्स होते हैं, जिसके वजह से ये जो होता है डिस्टिल्ड वाटर, इट इज कॉल्ड एज अ पुअर कंडक्टर और इट शुड बी बिकम लाइक अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। सो ये पूरा फॉर्मेशन जो होता है वो इसके फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं कि इट शुड बी मेकिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वही दिया है, एलईडी के बारे में आपको दिया है कि देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू द एलईडीज, वन लीड इज स्लाइटली longer than the other. Remember that the wire connecting to the circuit, the longer lead is always connected to the positive, while the shorter lead is connected to the negative terminal. नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्मेशंस में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। अभी यहाँ पे दूसरा एक दिया है कि we can also use another effect of electric current with the make a kind of tester. So do you recall that electric current produce the magnetic field? Or what happens to a compass needle kept nearby when electric current flow into the wire? Or can we make a tester using the magnetic? देखो, अभी एक चीज हमेशा समझना है, जैसे हमारे पास मैग्नेट होता है और मैग्नेट के आसपास अगर किसी भी सब्सटेंस को आप लेके जाते हो तो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप मैग्नेट के नियर बाय किसी भी आयन ऑब्जेक्ट्स को लेके जाते हैं तो वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। वैसे ही क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी कंडक्टर के अंदर से पास कर रहे हो ना, तो वो भी उसके एरिया के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी का स्पेसिफिक एरिया होता है वो एरिया जनरेटेड करता है, वो किसी भी सब्सटेंसेस को अपनी तरफ एट्रैक्टेड करता है। तो जैसे मैग्नेटिज्म्स एक्ट क्रिएट करता है, वैसे एक मैग्नेटिज्म्स का फॉर्म क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कॉपर या कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर से पास कर रही है। उसके आसपास आप इस निडल को लेके जाओगे, मैग्नेटिक निडल, तो वो डेविएटेड होगा। जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा उसी डायरेक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डेविएटेड होता है। सो ये इसके अकॉर्डिंग टू आप इसको मेजर कर सकते हो कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी डेविएटेड। तो ये वही टॉपिक है जो अभी मैंने आपको समझाया था कि मटेरियल के अंदर लेमन जूस है, विनेगर है, टैप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क है, हनी है, अगर उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हो तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डेविएटेड होगा या नहीं होगा। तो मैग्नेटिक नीडल कब डेविएटेड होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक नीडल्स जब डेविएटेड होगा जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कंडक्टर के अंदर से पास होता है। तो जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास आउट होगी। तो यहाँ पे दिया है कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट ईच
टच ईच अदर देयर इज अ एयर गैप बिटवीन देम। तो देखो दोनों अगर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो भी कोई भी अट्रैक्शंस जो पॉजिटिव नेगेटिव जो फॉर्मेशन जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्शन जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पासेड। तो सर्टेन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफली मटेरियल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, जिसके वजह से ऐसे मटेरियल्स को आप कंडक्टर कह सकते हैं, और बाकी जो पास आउट नहीं होते हैं उसको आप इंसुलेटर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा आपको जो टेबल्स दिया है, ये जो टेबल्स यहाँ पे दिया है, इसमें कौन सा कंडक्टर कौन सा इंसुलेटर है उसके हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करके कर सकते हो। तो ये पूरा फॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। तो जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक लिक्विड सब्सटेंसेस जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, द लिक्विड सब्सटेंसेस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड विच अंडरगोज द डिकम्पोजिशन, इसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को जो सॉल्यूशन कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। मोस्ट ऑफली द लिक्विड दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। जो मोस्ट ऑफली जो लिक्विड सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, मोस्ट ऑफली या तो वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या सॉरी मोस्ट ऑफली वो या तो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, या तो न्यूट्रलाइज यानी कि सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ करंट, जैसे करंट कंटिन्यूसली अगर एक सब्सटेंस में से पास हो रहा है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो हीट होने लगता है। अगर आपके घर के अंदर कोई फिलामेंट बल्ब को आप कंटिन्यूसली 1 आवर 2 आवर तक कंटिन्यू ऑन रखोगे, फिर उसके आउटर सरफेसेस को टच करोगे तो आपको हीट फील होता है। वो क्या होता है, वो सजेस्ट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट्स जो है किसी भी सब्सटेंसेस में हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे मोस्ट ऑफली प्रोड्यूस द हीट। सो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड, जो बल्ब होगा वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा विद द हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट टू बी ग्लोइंग, उसका जो फिलामेंट होगा हीट होगा और ग्लो होना स्टार्ट होगा। अगर करंट वीक है, इफ द करंट प्रॉपरली नॉट गेटेड टू द फिलामेंट, अगर वो कंडक्टर फिर भी वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सफिशिएंटली जो हीट है वो अगर उसको नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट बी ग्लो। सो दैट वाई इज सम ऑफ द सिचुएशन इवन इनटू द लिक्विड कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट बी ग्लो, क्योंकि अगर प्रॉपरली उसको करंट नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट बी ग्लो। सो इसके वजह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस पुअर मटेरियल है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो गुड मटेरियल है एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे दिया कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, जो अभी मैंने आपको समझाया कि एसिड, बेस या सॉल्ट के फॉर्म में कंटेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशंस के अंदर से, तो प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जितना उसको हीटिंग इफेक्ट चाहिए अगर वो उसको मिलता रहेगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, अदरवाइज अगर प्रॉपरली हीटिंग इफेक्ट या करंट नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट बी ग्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 14.2 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। देखिए हर एक सब्सटेंसेस जो होता है लाइक इलेक्ट्रिक करंट जो है एंड द इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करते तो रिजल्ट इनटू द डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन इनटू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। तो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर दो तरीके के आयंस जो है रिलीज होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो जो आयंस या जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ क्रिएट करते हैं बाय लॉस द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन को आप क्या कहते हो, एनियंस कहते हो, और जबकि जो पॉजिटिव होता है जिसको आप क्या कहते हो, एनोड कहते हो। ठीक है, तो एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन जिसमें होता है इसको कैशंस भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड कैशंस कैथोड, नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रोड उसको कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव जो होता है उसको आप एनोड कहते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इनटू द आयंस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्पेसिफिक सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इज जनरली कैरिड आउट इनटू द स्पेसिफिक एपार्ट्स, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर। ठीक है, तो ये जो कंसिस्ट करता है लाइक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लास वेसल्स कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट्स, दो मेटेलिक प्लेट्स जिसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड, जिसमें कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा, उसको बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जिसमें एनोड और कैथोड होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, नेगेटिव को आप कैथोड और पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, और उसके वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है वहाँ पे जनरेटेड होती है। सो यहाँ पे वही चीज़ आपको समझा है कि ये जो एक्टिविटी आपको समझा है, इस एक्टिविटी के अंदर वही चीज़ हमें समझना है
कि यहाँ पे जो मेटल का कैप है इसमें देखो कार्बन के जो रॉड्स है और वाटर है पासिंग द करंट थ्रू द वाटर। इसके अंदर जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करते हो तो दो तरीके के फॉर्मेशंस यहाँ पे क्रिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस प्रोसेस को हमें समझना है तो कैसे समझेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर समझना है तो सबसे पहले क्या करो कि एक बीकर के अंदर आप मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कॉपर को हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर आप कार्बन का इलेक्ट्रोड्स ले लो, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर का सल्फेट ले लो, उसको बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दो। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे थ्रू द एक्वस कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 सॉल्यूशन कहते हैं और यूजिंग द वोल्टामीटर विद द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड विद द बैटरी, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स है उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। आफ्टर सम टाइम अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ बबल दैट कैन बी सीन ऑन टू द एनोड, और टेस्ट जो होगा अगर आप गैस देखोगे ग्लोइंग स्प्लिंटर इनटू द वुड इट विल ग्लो स्लाइटली ब्राइटली। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऑक्सीजन इज जनरली प्रूविंग ऑन टू द एनोड और जो कैथोड पे जो उसका फॉर्मेशन है वो कॉपर वहां पे रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें हमें क्या समझ जैसे इलेक्ट्रोड्स आप किसको कहोगे, तो इलेक्ट्रोड्स आर द टू टर्मिनल्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी लीव्स टू द बैटरी एंटर्स और लीव्स थ्रू द बैटरी, इसको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। एनोड हम किसको कहेंगे, एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसको एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। और आयोनाइजेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सो ड्यू टू द आयोनाइजेशन, ये जो कॉपर सल्फेट का जो आयोनाइजेशन होता है CuSO4 जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो कॉपर जो होता है दैट गेट डेपोजिटेड ऑन टू द कैथोड, कैथोड पे कॉपर जाएगा और जो बाकी रहा वाइल द एनोड, एनोड पे क्या होगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर वहां से लॉस होगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 का मिलता है वो रिमेन्स अनचेंज होता है, इट कैन नॉट बी चेंज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 वाटर का जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो गैसेस जो है इलेक्ट्रिक करंट टू द वाटर वहां से पासिस होते हैं। सो यू कैन इजीली फॉर्म्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट कैन बी पासिस थ्रू द स्पेसिफिक फॉर्मेशन। तो पूरा सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का सॉल्यूशंस के फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये पोटैटो के चिप से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं, वहां पे दिया है कि बुजो है डिसाइडेड whether some of the fruits and vegetables also conduct the electricity or not. He cut a potato into 2 halves and inserted a copper wire or a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to make out the wires and tester inserted into the potatoes. When he came back after half an hour, he noticed there was a greenish blue spot on the potato around the wire, whereas was no such spot around the other wires. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो पूरा फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल रहा है, so that formations which can be seen here, ये जो पूरा फॉर्मेशंस बन रहा है, it can be seen like a moving of the electric current from the formation, जिसकी वजह से उसका पूरा इफेक्ट जो है चेंज होता है। So he was surprised this observation, along with पहले repeated this activity many times, then he found this always a wire connected with the positive terminal which had greenish blue spot around them. They felt the discovery was very useful because if could be used for the identifying the positive of a cell of a battery consolidated to the box. तो देखिए, तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप इस एक्टिविटी के थ्रू भी पास कर सकते हैं। सो पैसेज ऑफ एन एनी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कॉज अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर से जो आप इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करता है। एज अ रिजल्ट जो अभी मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस क्या होता है, उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस ऑफ कलर सॉल्यूशन में भी अगर ये डिपेंडेंट होता है कि किस तरह का सॉल्यूशन, क्या इलेक्ट्रोड्स और क्या इलेक्ट्रिक करंट को आप उसमें से पास आउट कर रहे हो। सो दैट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो देखो, पहले तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के बारे में हम समझ रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में, सो अ गुड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग तरीके के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक इट शुड बी हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होगा। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट शुड बी चीप एज पॉसिबल फॉर अ लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जनरली इज यूज्ड टू एक्सटेंसिवली द कॉमर्शियल पर्पस के लिए मोस्ट ऑफली यूज करते हैं। इसमें मेटल का प्योरिफिकेशन करना हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में हम ज़्यादातर
ये इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल क्या है, जो आपके बुक में नहीं दिया फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। सो फॉर दिस पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन मेटल, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, जो हम जो मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं इसमें से इम्प्योर मेटल जो मिलता है, इम्प्योर मेटल मेड विद द एनोड एंड प्योर मेटालिक स्ट्रेप इट यूज इज अ कैथोड। तो प्योर मेटल को कैथोड और इम्प्योर मेटल को एनोड के फॉर्म में आप इस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे और एक सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ प्योर मेटल उसके अंदर आप कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के फॉर्म में। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप उसके अंदर से पास आउट करेंगे तो एनोड जो होगा डिजोल्व होगा और ओनली प्योर मेटल डिपॉजिटेड होगा कैथोड पे। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ऐसे जो सारे हम मेटल का रिफाइनिंग करते हैं वो इस प्रोसेस से ही होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स के अंदर से मेटल का रिफाइनिंग भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं। जैसे सर्टेन मेटल्स जो एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम देयर ओर्स दैट कैन बी इजीली रिफाइंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जैसे एल्यूमिनियम जो ऑब्टेन होता है बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉक्साइट, Al2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो इस बॉक्साइट के अंदर से जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आप पास आउट करते हो तो उसमें से आप एल्यूमिनियम को रिकवर करते हो, क्रायोलाइट का सॉल्यूशन आप यूज करते हो। तो जैसे एक्टिव मेटल्स है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे मेटल को जो हम अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्टेड करते हैं और उसके ओर्स में से प्योर मेटल कंसीडर करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पहले एक चीज और आपको समझा दो, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है कि द प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल का जो रिफाइनिंग होता है उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। चलिए अभी आपके बुक में जो दिया है 14.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ दिया है रिकॉल दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज अ शाइनी हैंडल बार एंड द व्हील रिम्स। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing not to shining surface band. You might have also seen women using the ornaments which appear to be made of gold. However, with the repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal's band. In both the cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of metal can be deposited on the top of another metals? Well, we need to try ourselves. यहाँ पे एक एक्टिविटी का फॉर्मेशन दिया है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रोलाइटिस का प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको मैं समझा दूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो एक थिन लेयर पे दूसरे मेटल के लेयर को जो डिपोजिटेड करने की प्रोसेस होती है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। The articles which are cheap metals are coated with the precious metal like silver and gold, make them look more attractive. Okay, so these articles be electroplated is made by the cathode and to metal of deposited which made at the anode. So a soluble salt of this process is taken as an electrolyte. So when the current is passes through that copper, maybe a deposited thin film of metal deposited on a cathode, to make electroplating uniformly or firmly, a suitable strength is used, which is very high plating and from become very brittle. तो यहाँ पे दिया ही है कि when the electric current is passes through the copper sulfate solution, copper sulfate that is deassociated and the formations of copper and sulfate, the free copper get drawn into the electrodes from the other electrodes. The copper plate equal amount of copper gets from this solution. तो मान लीजिए अगर स्पून के फॉर्मेशंस में ऐसे ही है कि आप ये जो रिंग्स आप जो हम बनाते हैं कि लाइक दिस फॉर्मेशंस ऑफ जो रिंग्स है, ये जो रिंग्स आपकी काफ़ी शाइनिंग करती है या फिर मेटल के सर्फेसिस काफ़ी शाइन करते हैं, ये जो हेडलाइट शाइन करते हैं उसके फॉर्मेशन शाइन करते हैं। तो दिस आर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन सीन, ये मोस्ट ऑफली जो होते हैं इसी फॉर्मेशंस के अंदर आप इसको देखने को मिलता है। दिस आर जनरली हैविंग टू बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से आप देखने को मिलता है। ये क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकरंट, जो अभी मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कहते हैं। So electroplating is very useful process. It is widely used into the industries for the coating of metal object with a thin layer of a different metal. ठीक है, जैसे मैंने आपको समझा जो फिगर के अंदर दिया ही है कि एक लेयर पे दूसरे लेयर को इम्प्लीमेंटेशन करना। सो द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैव सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी व्हिच इज द मेटल ऑफ द लेग्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम प्लेटिंग इज डन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स,
बार टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स, ऐसे बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स पे इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा क्रोमियम हैज अ वेरी शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोडेट, क्योंकि जो एलॉयज होते हैं वो जल्दी कोरोडेट नहीं होते हैं। It generally resides the scratches, however chromium is very expensive and it may not be commercial to make the whole object making as a part of chromium. So the object is made very cheaper metal is called jewelries के लिए हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, like silver and gold on a less expensive, इस पे हम इस तरह के सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके अलावा टीन्स है, यूज ऑफ स्टोरिंग फूड्स है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फॉर्मेशंस पे आप उसको गैल्वेनाइज करते हो, जिसके वजह से आप फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्पॉइल होने से बचा सकते हो, या जो ब्रिजेस हम बनाते हैं वो ब्रिजेस का भी यूज हम इसी तरह के फॉर्मेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द जनरली फॉर्मेशंस ऑफ कोटिंग ऑन जिंक डिस्पोजिट ऑनटू द आयंस। तो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस जो है विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम उसके कुछ एप्लीकेशन डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ दिया है कि इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्टरीज द डिस्पोजेबल ऑफ यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ मेजर कंसर्न, इट इज अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर इज स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बहुत तरह के से वेस्ट रिलीज होते हैं। अभी हमें डिस्कशन करना है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस क्या है। Mostly it is widely used for the coating metals of objects with a thin layer of a different metal। एक थिन लेयर पे दूसरे अलग अलग मेटल्स को अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टू द मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक किचन गैस बर्नर, बाथ टैप एटसेट्रा, जो मैंने समझाया। ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज टू प्रिवेंट द कॉरोजन, जो कॉरोजन्स कॉरोडेड होते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रोमियम हैज अ वेरी शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट बी कॉरोडेड, तो क्रोमियम का हम यूज कर सकते हैं। ज्वेलरीज दैट शुड बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, सिल्वर एंड गोल्ड इज लेस एक्सपेंसिव ऑफ मेटल्स, उसका यूज कर सकते हैं। टीन कैन बी ऑल्सो यूज टू बी स्टोरिंग द फूड एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयंस को कोटेड करते हैं जो कॉरोजन से है, प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्ट के फॉर्मेशन से बचाने के लिए। तो ऐसे बहुत तरह के जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज जो हम प्रिपेयर करते हैं या ऐसे कोई सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस पे हम एक मेटल पे दूसरे मेटल को अगर डिपॉजिटेड करते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से आप उसको रस्टिंग या कॉरोजन्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द जनरली एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स, राइट। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वॉट एवर द टॉपिक्स दैट इज गिवन एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जस्ट रिवाइज हिज प्रैक्टिसेस and do more and more revisions and topics discussion with the different digital mediums of learning. Once again students, take care, stay home, stay safe till we discussing the next topic on the next lecture. Till take care and bye.